Good morning students, how are you all? Welcome to my channel विद्यादान Academy, changing the way of learning. चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा and don't forget to subscribe my channel so that you get all notification about my videos. So here I'm going to discuss about the plant physiology. In that I'm going to discuss about transportation in plant. So anybody can tell me what is physiology, right? So in this session we are going to discuss about the physiology. What is physiology in the plants, right? We are going to discuss all about its morphology, cell biology, more molecular biology, all that we will cover in that session, right? So my name is Jyoti and I am scientific research at Train ICR, right? So please get ready. What is transportation in plants? Here you can see the diagram of the plant, right? So before we are going to discuss, we have to know about all about the plants, right? What is shoot? The upper part of the plant is called shoot, right? Here you can see the internode. यानी कि internode क्या होगा? This is the diagram of the plant, right? And the space between the two leaves, it is called internode, right? And here the it is node, right, where the leaf is attached, right? This is called the node, right? Node. And जो प्लांट की जो लीव होती है, लीव के प्लांट पे छोटी सी जगह होती है, राइट? इस छोटी सी जगह को क्या बोला जाता है गाइस? एनीबडी कैन टेल मी? Okay, I'm going to discuss all about these things. This is called the petiole, right? This is called petiole, right? Axillary bud क्या होगा? लीफ के थ्रू छोटा सा एक पार्ट निकला हुआ होता है, उसको बोला जाता है axillary bud, right? Here the structure of the petiole, axillary bud, right? And plant में ये वाली structure क्या होगी? Midrib. इसको क्या बोला जाएगा? Midrib बोला जाएगा, right? This is the petiole, axillary bud. Here you can see the root, like primary root. Root hairs are also present. Root tip is present. Root cap is present. These all the structure of about the plant, right? और इसमें अब transportation कैसे होता है? Plants में water का transportation और minerals का transportation कैसे होता है? So we are going to discuss in that session. Plants need to move molecules over very long distances much more than animals do. They also do not have a circulatory system in place, right? Animals की तरह plant की structure नहीं होती है, right? So plant में क्या होता है? Water का movement कैसे होता है? Root से वो अलग अलग जगह पर जाके पहुंचता है, root part से, right? रूट के थ्रू प्लांट यहाँ पे रूट आएगी, सॉइल में जो वाटर प्रेजेंट होगा, सॉइल से ही तो वाटर का मूवमेंट क्या होगा? ऊपर की तरफ होगा. बट फोटोसिंथेट्स क्या होते हैं गाइस? फोटोसिंथेट्स होते हैं प्लांट का फूड, जैसे कि स्टार्च, शुगर. these are photosynthetes and these are the food of plants. और ये कहाँ पे synthesized होंगे? ये leaves में synthesized होंगे और leaves के थ्रू वो अलग अलग parts में क्या होंगे? Transport होंगे. This is called the transportation of the food and transportation of the water. कैसे plant में food का transportation होता है और कैसे water का transportation होता है. In that we are going to learn all these things, right? So movement across short distance, say within the cell, यानी कि cell के पास में ही, right? ये एक सेल जो पास में है, ये क्या हुआ? शॉर्ट डिस्टेंस हुआ ना. दिस इज कॉल्ड द शॉर्ट डिस्टेंस. मूवमेंट हो रहा है किसका? वाटर का, आयंस का जो मूवमेंट हो रहा है वो सेल टू सेल हो रहा है, उसे क्या बोला जाएगा? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन. लेकिन अगर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती है, वी विल डिस्कस लेटर. कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती है प्लांट्स में, राइट? उससे क्या बोला जाता है? लॉन्ग डिस्टेंस. कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के बाद में प्लांट का मूवमेंट जो होगा वो पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा. बिफोर दैट इट इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट. सो ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्गर डिस्टेंस प्रोसीड थ्रू द वेस्कुलर सिस्टम. वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन लाइक जाइलम एंड फ्लोएम.
जाइलम क्या होता है? जाइलम इज ऑल्सो वेस्कुलर सिस्टम, जहां से क्या होगा? वाटर का मूवमेंट होगा। और ये क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है, राइट? यूनिडायरेक्शनल होता है यानी कि इसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन होगा, राइट? एंड फ्लोएम में क्या होगा? फूड का फोटोसिंथेसिस का क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन होगा। जाइलम में वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, जबकि फ्लोएम में फूड या फोटोसिंथेसिस का क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन होगा। Here you can see the diagram of xylem vessel and phloem vessel, right? Here I am saying that it is a unidirectional one way होता है, right? वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, राइट? और क्या होगा? इनमें कोई वॉल्स नहीं है, सेल्स के बिटवीन कोई वॉल्स नहीं है, जबकि देखो यहाँ पे इनमें प्रेजेंट है फ्लोएम में थिक वॉल्स। क्या होगी? लिग्निन की बनी होती है, राइट? और इसमें फ्लोएम में क्या होगा? बाई वे फ्लो होता है, यानी कि ये क्या होगा? मल्टी डायरेक्शनल होगा, राइट? मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर का और फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, राइट? सो एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट दैट नीड्स टू बी कंसिडर्ड इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि प्लांट का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है। एज वी हैव डिस्कस दैट प्लांट में रूट से ट्रांसपोर्टेशन होता है, राइट? तो वो क्या हो रहा है? नीचे से ऊपर, यानी कि वो जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, जबकि फोटोसिंथेसिस का ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से हो रहा है? लीव्स के थ्रू, राइट? लीव्स से हो रहा है, दैट इट इज मीन कहाँ से हो रहा है? मल्टी डायरेक्शनल, क्योंकि वो मल्टी डायरेक्शनल में कैसे जाएगा? वो जब भी तो जाएगा ना मल्टी डायरेक्शन में, बिकॉज क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्टेशन सब जगह हो रहा है, यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है। सो दिस इज कॉल्ड द मल्टी डायरेक्शनल, इसीलिए फ्लोएम को मल्टी डायरेक्शनल बोला जाता है, राइट? So the mineral nutrients are taken up by the roots and transported upwards into the stem, leaves and growing regions, right? Hormones भी होते हैं प्लांट में, right? प्लांट के ग्रोथ के लिए, उसकी रेगुलेशन के लिए हॉर्मोन्स भी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि जिब्रेलिक एसिड, ऑक्सीन, इथाइलिन, ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स, right? These all are kind of the hormones, cytokinins, and all these are hormones which regulate the plant growth, and its chemical signals are also transported, right? So what is diffusion? डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन क्या होता है? आयंस का या मिनरल्स का अपनी हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ जाना क्या होगा? दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन, राइट? इसमें कोई एटीपी की रिक्वायरमेंट हुई क्या? एटीपी मीन्स कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई क्या, कि हमें बहुत एनर्जी लगानी पड़ी होगी? एज यू कैन सी द एग्जाम्पल like in winters, right? In winters you are closed your door and suddenly you will open your door, then the gases will come from its high concentration to low concentration, right? तो एयर का पास होगा, एयर जब कोल्ड एयर जब अंदर आएगी रूम में, तो वो कैसे आ रही है? अपनी हाई कंसेंट्रेशन, बाहर का एनवायरनमेंट बहुत ठंडा है, राइट? और हमारा अंदर का रूम है वो बहुत हॉट है, राइट? गर्म है वो, तो इतनी ज्यादा विंटर है नहीं रूम में, राइट? तो क्या होगा? अपनी एयर क्या होगी? अपनी हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ आएगी। दिस इज कॉल्ड द डिफ्यूजन। और इसमें हमें किसी भी एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं हुई। दिस इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। सो मूवमेंट बाय डिफ्यूजन इज पैसिव, इसीलिए इसे पैसिव डिफ्यूजन बोला जाता है। इस प्रोसेस को पैसिव बोला जाता है, right? And may be formed from one part of the cell to the other, or from cell to cell, or over short distance. Say from the intercellular spaces of the leaf to the outside. No energy requirement, right? In diffusion, molecules move in a random fashion. That net result being substances moving from regions to high concentration to region of low concentration. In डिफ्यूजन में बस इतना ही है कि टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, ये सब क्या होगा? ये सभी एक डिफ्यूजन का पार्ट है, राइट? और डिफ्यूजन क्या होगा? डिफ्यूजन
traits are affected by gradient of concentration, right? The permeability of the membrane separating them, जैसे कि temperature और pressure, right? Now we are going to discuss about the facilitated diffusion. What is facilitated diffusion? Facilitated diffusion मतलब कुछ molecules ऐसे होते हैं, कुछ substances ऐसे होते हैं जो कि कुछ small होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, तो उनको कुछ gated या gate या कुछ channel की requirement होती है, right? या कोई carrier की requirement होती है, right? तो इसीलिए इसको फैसिलिटेड डिफ्यूजन बोला जाता है, ताकि वो आयंस मूव कर सके चैनल्स के थ्रू, गेट्स के थ्रू या किसी कैरियर प्रोटीन के थ्रू इंट्रासेलुलर स्पेस, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से अपने इंट्रासेलुलर स्पेस में आना, विच इज कॉल्ड द फैसिलिटेड डिफ्यूजन, राइट? So in facilitated diffusion, special proteins help move substances across membrane without expenditure of ATP energy. यानी कि कुछ कैरियर प्रोटीन होते हैं, राइट? कैरियर प्रोटीन होते हैं जो कि सब्सटेंसेस को क्या होता है मूव कराने के लिए हेल्प करते हैं, लेकिन उनमें भी किसी तरह की एटीपी, किसी तरह की एनर्जी का कोई यूज नहीं होता है, राइट? So facilitated diffusion cannot cause net transport of molecules from a low to high concentration. This would require input of energy. Transport rate reaches a maximum when all of the protein transporters are being used, right? So it allows cell to select substances for uptake. It is sensitive to inhibitor which react with protein side chains. यानी कि sensitive होते हैं inhibitors के लिए, जो कि क्या होंगे, रिएक्ट कर जाएंगे किससे, प्रोटीन की जो साइड चेन होगी, प्रोटीन की जो साइड चेन होगी उसके साथ वो क्या कर जाएंगे, रिएक्ट कर जाएंगे, राइट? सो द प्रोटीन्स फ्रॉम चैनल्स इन द मेम्ब्रेन फॉर मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू. सम चैनल्स आर ऑलवेज ओपन, कुछ हमेशा ही ओपन रहते हैं, राइट? और कुछ क्या होते हैं, कंट्रोल्ड होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, राइट? जिन्हें कि क्या बोला जाता है, पोरिन्स. पोरिन्स जैसे कि एक्वापोरिन्स, राइट? जो कि वाटर का बना होता है, जिसमें कि वैसे तो ये नेक्स्ट लेवल की बात है. एक्वापोरिन यू कैन कंसिडर CNG एंड वाटर. इनका क्या होता है, मूवमेंट होता है वाटर का, CO2, वाटर एंड गैसेस, राइट? इनका क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है. एक्वापोरिन्स क्या होता है, वाटर चैनल्स होते हैं जिसके थ्रू इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है. द पोरिन्स आर प्रोटीन्स, राइट? क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं जो कि एक लार्ज पोर्स बने होते हैं. कहाँ पे, मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे, राइट? मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे पोरिन्स होते हैं जिसके थ्रू क्या होते हैं, आयंस का मूवमेंट होता है, राइट? Mitochondria and some bacteria allowing molecules up to the size of small proteins to pass through the extracellular molecules bound to the transport proteins. The transport protein then rotates and release the molecules inside the cell and जैसे कि water channels, right? Here you can see the diagram of symport, antiport and uniport. यूनिपोर्ट क्या होगा, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में क्या होगा, आयंस का या आयंस का क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होता है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में. एंटीपोर्ट्स में क्या होता है, आउट टू इन और इन टू आउट, दोनों तरह से ट्रांसपोर्ट होता है. आउट टू इन भी होता है, राइट? और इन टू आउट भी होता है. दिस इज कॉल्ड एंटीपोर्ट, राइट? एक आयन आ रहा है और एक आयन क्या हो रहा है, जा रहा है, राइट? लेकिन सिम्पोर्ट में क्या होगा, दोनों ही आयन एक ही डायरेक्शन में आएंगे, राइट? दिस इज कॉल्ड, राइट, द बोथ मॉलिक्यूल क्रॉस द मेम्ब्रेन इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि सेम डायरेक्शन में आ रहा है. एज यू कैन सी इन द डायग्राम, एक ही डायरेक्शन में आ रहा है. दिस इज कॉल्ड द सिम्पोर्ट, राइट? सो व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट? एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होगा, आयंस का अपनी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाना थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, राइट? इसमें क्या होगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होगा, अपनी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर जाना. एक्टिव ट्रांसपोर्ट
कहलाता है, right? So here you can see the diagram, what is diffusion, what is facilitated diffusion. Facilitated diffusion and diffusion, what is the process? This is the passive transport, right? passive transport है, right? फैसिलिटेड डिफ्यूजन में क्या हो रहा है, अपनी हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ जा रहा है वो, लेकिन उसमें उसकी कुल कैरियर प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है, राइट? दिस इज कॉल्ड द पैसिव फैसिलिटेड डिफ्यूजन। एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, अपनी लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ जा रहा है with the help of plasma membrane and with the help of energy, right? इसमें क्या होगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। एज यू कैन सी द एग्जाम्पल, आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट का क्या एग्जाम्पल हो सकता है, एक्टिव जहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, राइट? वी आर समथिंग पुलिंग समथिंग, राइट? जिसको हमें एनर्जी की जरूरत है, राइट? उसे क्या बोला जाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। गिविंग सम एफर्ट, राइट, अगेंस्ट, we are doing against the concentration, right? concentration gradient के against में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसे क्या बोला जाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, राइट? एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज कैरिड आउट बाय स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन, हेंस different proteins in the membrane play a major role in both active as well as passive transport. Pumps are proteins that use energy to carry substances across the cell membrane. These pumps can transport substances from a low concentration to high concentration. This is called the uphill transportation. अपने low concentration से high concentration की तरफ जा रहा है, इसको क्या बोला जाएगा, uphill transportation, right guys? So transport rate reaches a maximum when all the protein transport are being used or are saturated. जब saturation point आ जाएगा तब तो कोई transportation होगा ही नहीं ना. Like enzymes, the carrier proteins is very specific in what it carries across the membrane. These proteins are sensitive to inhibitor that reacts with protein side chains, right? Here you can see the comparison of different type of transportation, right? तो स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का सिंपल डिफ्यूजन में जरूरत होती है नहीं होती, लेकिन फैसिलिटेड में होती है, क्योंकि वो ही हमें मूवमेंट करवा रहा है, राइट? उस प्रोटीन्स के थ्रू ही क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, राइट? और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी उसकी जरूरत होती है। हाईली सेलेक्टिव होता है, सिंपल डिफ्यूजन में इसका हाईली सेलेक्टिव नहीं होता है। फैसिलिटेड में यस एक्वापोरिन्स प्रेजेंट होते हैं, राइट? सो वो क्या हुआ है, सेलेक्टिव हो गया है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी होता है। ट्रांसपोर्ट सैचुरेट्स होता है क्या, सिंपल डिफ्यूजन में नहीं होता है, लेकिन फैसिलिटेड डिफ्यूजन में होता है, राइट? एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इज ऑल्सो प्रेजेंट। अपहिल ट्रांसपोर्ट हमने देखा कि अपनी लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन में जा रहा है, राइट? तो अपनी लोस टू हाई जा रहा है तो क्या होगा, ये अपहिल मूवमेंट हुआ और इट इज ओनली प्रेजेंट इन द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, राइट? डिफ्यूजन में भी नहीं हो रहा था, क्योंकि डिफ्यूजन और सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेड डिफ्यूजन में क्या था, अपनी हाई टू लो कंसेंट्रेशन में जा रहा था, राइट? हाई टू लो कंसेंट्रेशन में जा रहा था, तो वहां पे अपहिल ट्रांसपोर्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। रिक्वायर्स एटीपी एनर्जी, एटीपी का सिंपल और फैसिलिटेड दोनों में ही रिक्वायरमेंट नहीं थी, दोनों में ही इसका यूज नहीं था, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इट इज नेसेसरी, राइट? सो प्लांट की बात, रिलेशंस की बात करेंगे आफ्टर दैट। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड don't forget to subscribe my channel. Thank you so much. We will meet in our next session. Thank you.